The next topic is of oscillators. So let us discuss a general form of oscillator circuit in which both Hartley and Colpitts oscillators will be included. Consider a general form of oscillator as in figure 1a. In this we will having an op-amp in which input is shown by terminals 1 and 3. The terminal 3 is grounded and the terminal 2 is output. And figure 1b is its linear equivalent circuit using an amplifier with negative gain AV. So this shows the gain of amplifier, and this is the output resistance. Input resistance, as you know, is infinite. So, and this point is shown as B, as this is ground and this is also ground. So this can also be called terminal 3 because this and this both are grounds. Now this is a voltage series feedback circuit. In this, the loop gain we will calculate. The value of minus A beta will be obtained from circuit 1A. Assuming it is a feedback amplifier with outputs from terminal A and 3, this is, you can say, terminal A or 2. So the output is from two and 3 and input is from 1 and 3. Load impedance is given by, from here we can calculate the load impedance. So load impedance will be Z2 parallel with the series combination of Z1 Z3. So we can say ZL is equal to Z2 parallel Z1 plus Z3 in series. Now this value you can easily calculate, and let me show you. So this ZL is parallel combination of Z2 parallel Z1 plus Z3, and the gain without feedback is given by A equal to minus AV ZL by ZL plus R0. See here, this is output we are taking from here, and this value you can calculate by using the series combination of this R0 and this ZL, and we are taking the output from this ZL only. So the gain will be minus AV because this is having negative gain, minus AV into ZL by ZL plus R0. So this R0 and ZL are assumed to be in series, and we are taking the output through this ZL. Therefore A will be given by A is equal to minus AV ZL by ZL plus R0. And
feedback factor is given by minus Z1 by Z1 plus Z3. You can see from here, output we are taking from here, and through this combination we are giving it feedback to the input. So what will be the feedback factor? This Z1 divided by Z1 plus Z3. So this will be the feedback factor. ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं. तो ये ग्राउंड से जो कनेक्टेड है, दिस Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z3, ये फीडबैक फैक्टर हो जाएगा आपका. तो ए आपका माइनस ए वी जेड एल बाई जेड एल प्लस आर नॉट, बी इज इक्वल टू माइनस Z1 बाई Z1 प्लस Z3. तो लूप गेन आपका हो जाएगा माइनस ए बीटा, और वो आपका होगा ये माइनस ए वी Z1 Z2 डिवाइड बाई आर नॉट इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3. Let me explain. This is A is equal to minus AV into ZL by ZL plus R naught. ठीक है. तो this will be, first you can calculate Z2 parallel Z1 plus Z3. What will be this? 1 over Z say is equal to 1 over Z2 plus 1 over Z1 plus Z3, which will be equal to Z1 plus Z2 plus Z3 into Z1, okay sorry, Z2 multiplied by Z1 plus Z3, और ऊपर आपका आ जाएगा Z1 plus Z2 plus Z3. So this is Z1 by Z, या ZL कह लो. So ZL will be Z2 Z1 plus Z3 divided by Z1 plus Z2 plus Z3. So this is ZL. And what is A? A is equal to minus AV ZL by ZL plus R naught. AV ZL by ZL plus R naught. So let us put these values. ZL आप ये put कर दो, Z2 into Z1 plus Z3 divided by Z1 plus Z2 plus Z3, और ZL plus R naught आप ये रख दो. ठीक है. अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. ये फैक्टर इस R naught से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये Z1 plus Z2 plus Z3 इससे कैंसिल हो जाएगा. ये हमने यहाँ पे किया है कि ये Z1 Z2 Z3 यहाँ पे कैंसिल हो गया. Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस R नॉट इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बाई Z1 प्लस Z2. तो ये Z1 प्लस Z3 ये हमने बीटा मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. सो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था. ठीक है. तो माइनस ए बीटा इजकल टू ये हो जाएगा आपका तो ये वैल्यू आएगी माइनस में. ठीक है. ए और बीटा आपके दोनों माइनस में हैं. ठीक है. और हमने माइनस ए बीटा निकालना है. तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये हमारा माइनस बच गया. तो ये हमारी वैल्यू आएगी. ठीक है.
अब फाइनली इसमें बीटा का फैक्टर ये हमने Z1 बाई Z1 प्लस Z3 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया आपका माइनस ए बी Z1 Z2 बाई आर नोट इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। सो ये वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली। द नेचर ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स Z1 Z2 Z3 ये कैसे होंगे Z1 Z2 Z3। देखो ये इम्पीडेंसेस लिए हैं हमने, ठीक है। तो इम्पीडेंस आपका रिएक्टेंस भी हो सकता है, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्योर रिएक्टेंस भी हो सकता है, प्योर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। हम मानेंगे इफ इम्पीडेंसेस आर प्योर रिएक्टेंसेस, ये हमने जूम कर लिया है कि प्योर रिएक्टेंस है, यानी आइदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव, या तो ये इंडक्टर्स हैं या कैपेसिटर्स हैं, मिक्स नहीं है, ठीक है। देन Z1 इज इक्वल टू JX1, Z2 इज इक्वल टू JX2, Z3 इज इक्वल टू JX3। सो फॉर एन इंडक्टर X इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, और कैपेसिटर के लिए X इज इक्वल टू -1 बाई ओमेगा C हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म हमने मान ली, और वो वैल्यूज अगर इसमें हम पुट करेंगे, दैट इज Z1 की जगह JX1 पुट कर दो, Z2 की जगह JX2, Z3 की जगह JX3। अगर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, देन वी विल गेट दिस AB X1 X2 डिवाइड बाई JR नॉट इंटू X1 प्लस X2 प्लस X3 माइनस X2 इंटू X1 प्लस X3। फॉर लूप गेन टू बी रियल, हमें लूप गेन अगर रियल चाहिए यानी जीरो फेज शिफ्ट हो, देन इमेजनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। तो ये इमेजनरी पार्ट कौन सा है इसका, ये है, दिस इमेजनरी पार्ट मस्ट बी जीरो। और ये कब जीरो होगा, जब ये X1 प्लस X2 प्लस X3 तीनों का जो सम है ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन 2 हमने जूम कर ली। एंड माइनस ए बीटा इज इक्वल टू AV X1 X2। तो अब ये जीरो इसमें पुट कर दो, नीचे क्या बचा, माइनस X2 इंटू X1 प्लस X3। तो ये माइनस आपने यहाँ रख दिया A1, ठीक है, X2 आपने यहाँ से काट दिया, तो आपके पास बचेगा माइनस AV इंटू X1 बाई X1 प्लस X3। अब यहाँ से X2 की वैल्यू आप माइनस ऑफ X1 प्लस X3 कर दो, ठीक है। वो जब करोगे नीचे भी X1 प्लस X3 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस A बीटा इज इक्वल टू AV X1 बाई X2, ये आपका लूप गेन होगा। सिंस माइनस AB मस्ट बी पॉजिटिव एंड एट लीस्ट यूनिटी, ठीक है। तो ये आपकी ब्रुकहाउज़न क्राइटेरिया है, ठीक है। ये या तो पॉजिटिव होना चाहिए और कम से कम 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या उससे बड़ा। देन X1 एंड X2 मस्ट हैव सम साइन, मस्ट हैव सेम साइन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जब होगा माइनस ए बीटा है ना, माइनस ए बीटा है ना, 1 प्लस ए बीटा होना चाहिए। तो माइनस ए बीटा इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और वो पॉजिटिव कब होगा, जब ये X1 और X2 दोनों सेम साइन के हों, ठीक है। और आपको पता है, देखो इंडक्टर आपका पॉजिटिव साइन का देखा था हमने, कैपेसिटर आपका नेगेटिव साइन का देखा था, ठीक। तो ये सेम साइन के जब होंगे जब या तो इंडक्टिव हो दोनों या दोनों कैपेसिटिव हों, यानी या तो दोनों इंडक्टर्स हों या दोनों कैपेसिटर्स हों। और इस केस में आपका माइनस X3 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 हो जाएगा, ठीक है। और इस बात से हमें क्या पता चला कि X3 मस्ट बी ऑफ डिफरेंट नेचर, X3 आपका दूसरे नेचर का होना चाहिए, यानी X1 X2 अगर इंडक्टर्स हैं तो ये कैपेसिटर होगा,
अगर ये कैपेसिटर्स हैं तो ये इंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है एक ऑसिलेटर की। तो उसमें ये कंडीशन हम लें, अगर x1 x2 आर कैपेसिटर्स देन x3 मस्ट बी इंडक्टर, ये मैंने बता ही दिया। दिस सर्किट इज कॉल्ड कोलपिट्स ऑसिलेटर, तो इसको आप कोलपिट्स ऑसिलेटर बोलते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ x1 x2 आर इंडक्टर्स then x3 must be capacitor. This circuit is called Hartley oscillator. In Hartley oscillator, however, there may be mutual coupling between x1 and x2 and the above equation then will not apply. ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ये x1 x2 अगर कैपेसिटर्स हैं तो x3 इंडक्टर होगा और उसको हम कोलपिट ऑसिलेटर बोलेंगे। और अगर x1 x2 इंडक्टर्स हैं फिर x3 कैपेसिटर होगा एंड वी विल कॉल इट हार्टले ऑसिलेटर।